Hello. So today's guest is Heta Shah. I'm just accepting her request to go live with her. I'm trying to accept her request. Uh, there is some challenge which I'm facing to go live. Okay, let me again check. I'm trying to go live. I have accepted yes. Hello, Heta. How are Hi, you? Hi. I'm doing well. How are you? I'm doing great, Heta. Thank you so much for joining us today here. It's my pleasure to have been interacting with one of the parenting coach. Oh, thank you so much. And it's my pleasure to have you here as a psychologist. Let me introduce you to our followers. Heta Yes. Shah is a psychologist with clinical specialization. She is a co-founder of Astitva Clinic and she has been working with parents and children also on various issues relating to, child growth and even the behavioral issues also. So I thought she's the right person whom we can invite here today and have a discussion about a very important topic, that is what is the role of parents beyond academics. Yes, Heta. Thank you. Is there Thank you, anything which you Namrata. would like to add about your introduction? No, I think that's the crisp introduction that you gave about me. Thank you so very much for inviting me and we having an interaction on to actually given in the current scenario where parents have been at home with kids been at home, online school going in. So how it becomes very important as a role of a parent and not only to studies but beyond that too. Exactly, exactly. You're Yeah, absolutely right. So yes, Heta, we have. if you could throw light on few areas, ऐसे एरियाज जहाँ पे एक्चुअल में पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है Hmm, इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. एकेडमिक्स अभी तक जैसे आपने बोला, दिस पैंडेमिक सिचुएशन हैज करंटली चेंज द कंप्लीट सिनेरियो. सो correct. आपके हिसाब से ऐसे कौन से मेजर एरियाज हैं जो पेरेंट्स ने पक्के पक्के देखने ही चाहिए? Okay, so highlighting onto the few areas that parents needs to be taking care of. So there is this one thing that goes in like nature versus nurture. So nature versus nurture में क्या होता है? Nature, when I say, it's what a child is born with certain skills, certain genetics or hereditary skills which a child is born with, where we can't do anything much. But as a parent or as a caretaker also, what role comes is the part of a nurture. अब मैं जब नर्चर की बात करती हूँ तो उसमें सारी चीजें आ जाती है. व्हाट इज द एनवायरनमेंट आप प्रोवाइड करते हो बच्चों को. सो एज सिंपल एज दैट, मैंने एक बीज डाल दिया है सॉइल में, उसके बाद मैं उसका कितना ध्यान रखता हूँ टू ग्रो इट कम्प्लीटली, टू गिव इट फ्रूट्स. सो दैट इज द रोल ऑफ अ पेरेंट. सो राइट फ्रॉम एकेडमिक्स, येस, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज वो एक प्लेटफॉर्म देता है बच्चों को आगे इंडिपेंडेंट सर्वाइवल के लिए. बट सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं है, उसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स है, इमोशनल बैलेंस रेगुलेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, डिसीजन मेकिंग है. तो ये ओवरऑल टू नेम फ्यू, दीज आर द फ्यू स्किल्स इवन द पेरेंट्स नीड टू इनकलकेट, जो उनको ध्यान देना ओके. बहुत ही जरूरी हो जाता है राइट फ्रॉम द राइट. बिगनिंग. क्योंकि एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो हम बोलते हैं, जो पेरेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, या तो पेरेंटल के अलावा ग्रैंड पेरेंट्स है कि प्राइमरी यस. केयर गिवर्स है जो राइट. प्रोवाइड कर सकते हैं. सो देर वुड राइट. बी टाइम्स वेयर पेरेंट्स माइट नॉट बी द वन हु वुड बी टेकिंग केयर, बट पेरेंट्स को छोड़ के जो एनवायरनमेंट, प्राइमरी एनवायरनमेंट हो Yes, जाता है बच्चों का, exactly. वो Right, बहुत right, इंपॉर्टेंट होता है कि वो हम कैसे प्रोवाइड करते हैं. क्योंकि बच्चे right. भले बोल नहीं सकते बट दे कैन एब्जॉर्ब द वाइब, Exactly. You're दे कैन absolutely फील एंड right. सेंस दैट. Right, सो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एज अ रोल ऑफ right. अ पेरेंट और एज अ पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट टू बी That's टेकन so केयर true. ऑफ. That's so.
Yes. Yeah. So few points. In fact, I'm writing such inputs you are giving. तो मुझे एक बात यहाँ से बहुत अच्छी लगी कि हम बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट की, और कई बार एनवायरनमेंट देखा जाता है फिजिकल एनवायरनमेंट, लेकिन आप बात कर रहे हो वाइब्स की. सो इट इज सो मच Correct. इम्पोर्टेंट कि फिजिकल एनवायरनमेंट तो एवरी पेरेंट ट्राइज टू गिव समथिंग बेटर टू आवर चाइल्ड, राइट. ऐसा कहीं पे भी Yes. नहीं होता कि हम उसमें कोई चीज कमी करते हैं, लेकिन आप जो वाइब्स की बात कर रहे हो, दैट कम्स फ्रॉम अवेयरनेस, दैट कम्स फ्रॉम द कॉन्शियसनेस ऑफ द पेरेंट्स, ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स, आई गेस. क्योंकि जिस तरीके Correct. का एक इमोशनल एनवायरनमेंट हम बच्चे को प्रोवाइड Yes. करते हैं, आई थिंक वो उनकी ग्रोथ में बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट करता है ना. करेक्ट करेक्ट. क्योंकि क्या होता है, जो प्राइमरी केयर टेकर्स है वो इमीडिएट रोल मॉडल्स हो जाते हैं बच्चों के. सो वो हाँ, किस हिसाब से सिचुएशन को डील कर रहे हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपने इमोशंस को रेगुलेट कर रहे हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन ओके हाउ आर पेरेंट्स या प्राइमरी केयर टेकर्स डीलिंग विद इट. करेक्ट. चाहे फिर वो वर्क रिलेटेड हो, उनके उनके खुद के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो, सो वो सारी yes, चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए. और राइट फ्रॉम द बिगनिंग, बिकॉज कहा जाता है कि 7 years तक बच्चों का मैक्सिमम ब्रेन डेवलपमेंट होता है. करेक्ट. सो दैट इज द क्रूशियल पीरियड. इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू आर इन्वेस्टिंग each and yes, every moment you are absolutely. investing without knowing So how true. it will come back. करेक्ट. Exactly. सो दैट प्लेज अ This is वेरी so true. इंपॉर्टेंट रोल, ये कि आप क्या इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें. हाँ जी, हाँ जी. So see again, the investment does not be specifically the materialistic investment जो हम यहाँ करेक्ट. पे बात करते हैं. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि each moment जो हम बच्चे के साथ बिता रहे हैं, उस मोमेंट में what is my reaction towards the situation, what is my response towards the situation. Even करेक्ट. जो मेरे relations बाकी लोगों के साथ है, बच्चा हर एक चीज ऑब्जर्व करता है, एंड दैट इज हाउ आई गेस जो आप इमोशनल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हो, डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हो, ये सारी चीजें बच्चे सीखते हैं. तो वे वी रोल मॉडल देम. जिस तरीके से मैं एब्सोल्युटली. घर में एक पर्टिकुलर अगर मुझे चैलेंज फेस हो रहा है, तो उस चैलेंज को मैं किस तरीके से हैंडल कर रही हूँ, बच्चा बहुत विजिलेंटली हमें ऑब्जर्व कर रहा होता है. यस हमें यस कई बार यस. लगता है, इनफैक्ट कई पेरेंट्स ऐसी मिस्टेक करते हैं कि उनको लगता है बच्चे को क्या समझता है, अभी छोटा है, लेकिन करेक्ट. आई डाउट कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. बच्चा हमसे इनफैक्ट ज्यादा समझता है. आजकल के बच्चे हमसे बहुत ज्यादा स्मार्ट है. और जो करेक्ट. आपने करेक्ट. नर्चर दी नेचर की बात की एंड द सीड विच यू टॉक अबाउट, आई मीन इससे मुझे एकदम एक क्लियर एग्जांपल याद आ रहा है कि अगर मैं आज सीड लगाती हूँ और मेरा प्लांट ऐसे आड़ा टेढ़ा बड़ा हो रहा है, सो दैट इज हिज नेचर. But then I don't stop watering the plant, I don't stop nurturing the plant, right? So in fact करेक्ट. हमारे बच्चों के भी केस में यही चीज कितनी ट्रू है कि उसका जो नेचर है हम उसको किस तरीके से नर्चर करें. सो ये यस. श्वेता, अगर आप हम रोल मॉडल की बात कर रहे हैं, तो रोल मॉडल में से बच्चे डिसीजन मेकिंग सीखेंगे या इमोशनल ग्रोथ के बारे में सीखेंगे. तो ऐसी कुछ टिप्स अगर आप हमें दे सको कि ऐसा पेरेंट्स ने क्या करना चाहिए कॉन्शियसली, सो दैट बच्चे में ये चीजें ऑटोमेटिकली आत्मसात हो रही है. ओके. सो अगर उसके लिए मुझे एग्जांपल देना, सो राइट फ्रॉम द बिगनिंग हम क्या करते हैं, नियोनेट जब बच्चा बॉर्न ही होता है तब से हम कम्युनिकेट करते हैं बच्चे के साथ. करेक्ट. हाँ जी. वर्बली. सो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन, हमारी वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स. सो उसमें एज सिंपल एज जो तरीके के हम वर्ड्स यूज करते हैं, बहुत हाँ बार जी. क्या होता है हम मस्ती में यूज कर देते हैं, जब बच्चा छोटा होता है वो यूज बैक करता है, हमें हंसी आती है तभी के लिए, अरे वाह वो देखो. वो एक फॉर्म ऑफ ह्यूमर हो जाता है. बट Right. वही चीज को ज्यादा देर तक बच्चा ड्रैग करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो हमें लगता है अरे बच्चा क्या लैंग्वेज यूज कर रहा है. बट वो Right, बच्चे ने right. लैंग्वेज कहाँ से पिकअप की है. सो यूज ऑफ वोकैबुलरी जैसे हम बोलते हैं, शब्दकोश जिसको, वो बहुत हाँ जी. इंपॉर्टेंट हो जाता है. हाँ जी. अगेन हाँ जी. लेबलिंग. करेक्ट. सो हाँ. जब हम बच्चे को लेबल, अरे तुम्हें ये भी नहीं आता है, चलो मैं सिखाता हूँ, अरे. Right. सो बच्चे को एक्सप्लोर, वो प्लेटफॉर्म देना कि वो भले टॉयज को, गेम्स को खुद के तरीके से खेले. सो वो एक प्लेटफॉर्म देता है एक्सप्लोर करने के लिए, बच्चे को नया पर्सपेक्टिव एंगल देखने के लिए. सो दैट ऑल्सो हेल्प्स देम टू बिल्ड अप ऑन टू देयर क्रिएटिविटी स्किल्स. करेक्ट. अगर कोई बिहेवियर जैसे सिंपल, जब बच्चे अराउंड मोटर स्किल्स डेवलप हो जाती है उनकी 2.5 years पे,
बच्चा जंप कर रहा है बेड पे, हमें नहीं चाहिए कि वो ना करे, तो हम सिर्फ बोलते हैं अरे जंप मत करो, या तुम ये मत एग्जैक्टली, करो, तुम वो मत करो। हम लिस्ट तो बना देते हैं ये सारी चीजें मत क्या करो, पर नहीं हम उनको, करना है, करेक्ट, पर हम उनको ये बोलते हैं कि क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए। करेक्ट। सो एब्सोल्युटली, अगर आप बोलते हो कि ओके बेड पे जंप मत करो, उसके आगे कंटिन्यूएशन में इफ यू कुछ से इंस्टेड ऑफ जंपिंग ऑन द बेड प्लीज जंप डाउन, तो हम एग्जैक्टली, उनको सो पैरेलल एक और दे रहे हैं एनवायरनमेंट के क्या करना चाहिए। So we are सही, putting in a platform to tell them what are the expected behaviors. यस Correct? यस, So that becomes very important. Otherwise क्या होता है, अरे मुझे तो हर चीज में ना मिलती है, कभी आप लोग राइट, मुझे हाँ बोलते ही नहीं हो कुछ भी चीजों के लिए. एग्जैक्टली, So again, एग्जैक्टली, giving and setting in the boundaries, राइट, putting in the consequences at times at the early stage. भले वो राइट, materialistic consequences नहीं होने चाहिए. हाँ जी, हाँ It जी, could be in any form. Correct? So that's how राइट, these things over a longer period, even when the child is building up a relationship further with friends, with other members of the society too, child knows how to maintain that relationship. Correct? Child knows how to set in the boundaries. Just I'll यस, give you an example. There is this one kid who is 14-year-old. She's excellent with her academics, but then she doesn't have ओके, any friends. Yeah, now in order to just that, okay, उसके friends उसके साथ interact करे, during one of the exam, the friend, one of the classmate asked her करके please help me with the answer. And right now since online exams are going on, उसने online उसको answer दिखा भी दिया, जहाँ पे उसको पता है वो गलत है. Now the whole intention was क्योंकि मैं आंसर दिखाऊंगी, probably my हाँ, तो classmate will मेरा start talking to फ्रेंड me. बनेगा, राइट, हाँ, correct. So again, putting in the correct examples right at a एग्जैक्टली, early age plays a very important role. So मैं दो चीजें emphasize करूंगी right from beginning. One is communication. One is कम्युनिकेशन, acknowledging and identifying emotions. जैसे बच्चे हाँ, दैट्स tantrums सो पे ट्रू, थ्रो करते हैं, जिद पे आ जाते हैं, करेक्ट, हाँ जी, तो हाँ हम जी, क्या बोलते हैं, ये मत करो, ओके मुझे लगता है तुम अभी थक चुके हो, तुम शांत हो जाओ फिर हम बात करेंगे. राइट, दैट्स सो करेक्ट. ट्रू, सो दैट्स ये दो चीजें एट अ अर्ली एज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू पुट अक्रॉस टू द people who have been part of ऑडियंस, this live session, the audience. Yes. थैंक यू सो मच हेता, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स आपने बताए. सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपने कम्युनिकेशन का बताया, एंड इन कम्युनिकेशन द यस कम्युनिकेशन, और वहां से Yes. मेरे को लगता है कहीं ना कहीं हम बच्चे को रेजिलियंट भी बनाते हैं, क्योंकि अगर हम बच्चे को जितना नो नो करते रहेंगे, ये मत करो वो मत करो, तो बच्चे को आगे का रोड मैप समझ ही नहीं आते कि एग्जैक्टली फिर मुझे करना क्या है. सो बच्चे Correct. को ये नहीं समझ आता. सो इनफैक्ट जब लाइफ में आगे जाके कोई चैलेंजेस बच्चा फेस कर रहा है, कभी कोई फेलियर भी फेस कर रहा है, तो वो उसके लिए डेडलॉक हो जाता है. वहां से वापस कैसे बाउंस बैक होना है, ये शायद बच्चे को नहीं समझ आता है, क्योंकि वो पर्सपेक्टिव ही नहीं पता होता है. क्योंकि बचपन से मैंने सिर्फ नो नो यही सुना है. आई हैव नॉट हर्ड अबाउट द अल्टरनेटिव विच आई कैन डू. Correct. आपने जैसे सिंपल Correct. एग्जांपल दिया जंपिंग का, सो दैट इज सो बेसिक एंड बहुत अच्छा एग्जांपल है, जो हमारे पेरेंट्स पक्का अच्छे से समझ जाएंगे कि यस, अगर हम सुबह से लेके, इनफैक्ट एक स्टडी है जो बोलती है कि we use no word 1,75,000 Yes. times till the child becomes around 18 years of age. मुझे लगता है बहुत ज्यादा नंबर बड़ा रहेगा. 175 तो बहुत छोटा नंबर है आई गेस, लेकिन Correct. उस बच्चे के दिमाग की हालत सोचिए जो इतने बार नाना नाना सुन रहा है. एंड द सेकेंड पॉइंट जो आपने बोला, इसी को रिलेटेड है, अंडरस्टैंडिंग द इमोशन एंड एक्नॉलेजिंग द इमोशन. कई बार हम बच्चे को इसी तरीके से लेबलिंग भी कर देते हैं, मुझे लगता है रो मत, तू छोटा है क्या, तू बड़ी है ना, तू तो समझ सकती है. सो ये भी बहुत छोटी छोटी लेबलिंग होती है जो हम अननोइंगली कर देते हैं. इंटेंशन नहीं होता है, बट अपना कंडीशनिंग Yes. उस तरीके का Yes. होता है आई गेस. एंड सेकेंडली उसमें जेंडर फैक्टर भी एड ऑन हो जाता है. अरे लड़का यस, होके क्यों रो रहा है, लड़की होके क्यों चिल्ला रही है, गुस्सा क्यों कर रही है, शांति से बात करो. तो उसमें जेंडर यस, फैक्टर भी आ जाता है. बट कहीं ना यस, कहीं क्या होता है, हम भूल जाते हैं वो ह्यूमन बीइंग को बिहाइंड अ बॉय और अ गर्ल. राइट, करेक्ट. एंड इवन व्हेन दे वांट टू एक्सप्रेस सर्टेन थिंग्स, वो नहीं कर पाते हैं, बिकॉज जैसे बच्चे बड़े होते हैं कहीं ना कहीं उनको भी पता चल जाता है ओके आई वुड बी जज्ड.
करेक्ट. Exactly. सो So वो true. So सप्रेशन पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. वो बैगेज होती है जो फिर हम सालों तक खींचते जाते हैं carry. उसको विदाउट डीलिंग एंड हीलिंग थ्रू इट. तो उसके लिए वो बहुत Exactly. इंपॉर्टेंट होता है इमोशंस एक फैक्टर. एंड I जब हम know. I know. रेजिलियंस की बात करते हैं टू एड ऑन, सो देयर वाज दिस वन रिसर्च बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जहाँ पे उन्होंने बताया था इन ऑर्डर टू मेक अ चाइल्ड रेजिलियंट इररिस्पेक्टिव वो इनर स्ट्रेंथ उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर चाइल्ड टू हैव वन स्टेबल रिलेशनशिप. Oh, is सो that so? अगर बच्चे को या एक स्टेबल रिलेशनशिप भी होती है ना जहाँ पे वो सिक्योर फील करता है, हाँ जी. ऑटोमेटिकली द चाइल्ड गेट्स इन द स्ट्रेंथ टू फेस एंड डील विद इट. Right. क्योंकि Right. उनको पता है करके कि नहीं ये एक पर्सन है या मेरा ये एक रिलेशनशिप है, कम वॉट में वो मुझे समझेगा. That is so true. And सो अगर वो वो रिलेशनशिप पेरेंट हो तो आई थिंक वो बच्चे की लाइफ यस कितनी वंडरफुल हो जाएगी, यस कितनी यस वंडरफुल. यस. राइट. बिकॉज कम आपने वॉट मुझे, हाँ में जी. नहीं कंटिन्यू. नहीं नहीं, प्लीज प्लीज गो अहेड. Yeah, so come what may, it's again coming back to the roots. Parents are your roots, correct? So अगर वो secure relationship होती है, बाहर चाहे कुछ भी हो, when we are coming back at our own place, मैंने गलती भी की है ना, the bond should be such मैं आके बोल सकती हूँ. अरे एग्जैक्टली. मम्मा सो listen और पापा listen that I did something like this. राइट. और मुझे लगता है ये तभी हो सकेगा जब बचपन से ही पेरेंट्स इतने कॉन्शियस है कि बच्चे का जो भी इमोशनल लेवल आ रहा है, बच्चा रो रहा है तो इंस्टेड ऑफ जस्ट शटिंग इट डाउन लाइक नहीं नहीं रो मत, मैं तुम्हें खिलौना दे देती हूँ, लेकिन Correct. लेट देम क्राई, लेट देम एक्सप्रेस देयर इमोशंस, लेट देम एक्सप्रेस द एंगर. सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब हम सोचते हैं कि एंग्री होना इज अ रॉन्ग इमोशन, बट इट इज सो मच पार्ट ऑफ द नेचर. आई मीन लाइक कौन सा Yes, ऐसा इंसान है धरती पे जिसे गुस्सा नहीं आता है. सो आई correct, थिंक correct. बचपन से लेके इमोशंस जो बच्चे के उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हो रहे हैं उसको वहां पे एक्सेप्ट करो, क्योंकि जब तक मैं एज अ पेरेंट एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, इनफैक्ट कई बार बच्चा अगर झूठ भी बोलता है, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मेरे बच्चे के दिमाग में उस टाइम पे चल क्या रहा था. Correct. अभी जैसे आपने वो 13 साल के बच्चे का जो एग्जाम्पल दिया, आई गेस अगर घर पे ही उसका वो एक रिलेशन स्ट्रांग रहेगा जैसे आप बोल रहे हो, तो मुझे बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी. करेक्ट 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 करेक्ट. सो जैसे आपने बताया कि बच्चे को इमोशन एक्सप्रेस करने दो एंड क्यों क्या चल रहा है उसके दिमाग में. सो वो मुझे दो चीजें याद दिलाता है. एक, हम बच्चों को बोलते ना करके अरे गुस्सा अच्छा नहीं होता है, हमें गुस्सा आना नहीं चाहिए. सो व्हेन आई एम डूइंग थेरेपी विथ माय चिल्ड्रन और पेरेंटिंग स्ट्रैटेजीज मैं जब करती हूँ एज अ पार्ट ऑफ काउंसलिंग और थेरेपी, सो मैं उनको वही सिखाती हूँ. आई एम लाइक इमोशंस ना गुड या बैड या पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होते, उनको हम जिस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं वो डिसाइड करते हैं वो पॉजिटिव था या नेगेटिव था. जैसे कि सिंपल एग्जांपल मैं बच्चों को देती हूँ एक्सप्लेन करने के लिए. हम लाइक जब तुम खुश होते हो और तुम अभी स्पेशली ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हो, मम्मा ने आके तुम्हें कुछ सरप्राइज दिया और तुम खुशी में वो ऑनलाइन सेशन में जब वीडियो ऑन है तुम डांस करने लगते हो, वो गलत होगा. क्यों? हमें तो बोला जाता है ना हैप्पी इज अ पॉजिटिव इमोशन, तो यहाँ पे क्यों गलत हो गया? क्योंकि सिचुएशन जिस हिसाब से तुमने एक्सप्रेस किया वो गलत था. सेम वे तुम्हें किसी चीज के लिए गुस्सा होगा, जैसे टीचर ने कुछ बोला और तुम्हें गुस्सा आया है, करेक्ट? सो तुम टीचर को तो कुछ नहीं बोल सकते, वो गुस्से को कैसे तुम चैनलाइज कर सकते हो? यू पुट इन हार्ड एफर्ट्स इन दैट सब्जेक्ट, स्कोर बेटर मार्क्स, ऑटोमेटिकली यू आर चैनलाइजिंग योर एंगर इन अ करेक्ट वे. तो यहाँ पे जो हम बोलते हैं एंगर या गुस्सा बहुत बुरा है, वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो गया. करेक्ट? सो जो हम लेबल दे देते हैं ना, थैंक यू. सो जो हम लेबल कर देते हैं ना इमोशंस को, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नहीं होना चाहिए. इमोशंस सबको आने चाहिए, अदरवाइज वी आर नॉट ह्यूमन बींग्स, वी आर रोबोट्स देन. करेक्ट? सो इट्स कंप्लीट आवर राइट टू एक्सप्रेस दोस, एक्सपीरियंस दोस, बट जिस हिसाब से हम एक्सप्रेस करेंगे that will play a very important role. And when it comes to behaviors, instead of just stopping at what behavior it is, let's try to understand the why behind that behavior. Yes, exactly. What he is trying to communicate. Yes. Yes, yes. अगर मेरे बच्चे को झूठ भी बोलना पड़ा, okay, झूठ बोला, that is what?
बट वाई ही हैड टू लाई, प्रोबेबली Why? उसको क्यों? सिक्योर फील नहीं हुआ, उसको लगा कि हाँ मेरे पेरेंट्स नहीं समझ पाएंगे, उसके लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। जबकि बच्चे को पता रहेगा कि आज नहीं तो कल पेरेंट्स को पता चलना ही है, बट फॉर द टाइम बिंग झूठ बोला। He's just borrowing the time. Yes. Yes, yes, yes. So why behind the behavior? Be it anything. In terms of just pleasing the parents, also at times child might end up into certain behaviors. It could be Yes. lying also. It could be Mhm. stealing also. It could be Right. throwing tantrums also. But Yes. why? Why? Why behind a behavior plays a very important role. एग्जैक्टली। इनफैक्ट मुझे इस पे से एक चीज याद आ रही है, मैं वो वर्कशॉप लेती हूँ, हाउ टू बूस्ट डिजायर्ड बिहेवियर। पूरा हाँ, होने के बाद मैं एंड में सब पेरेंट्स को एक ही चीज बताती हूँ, जो भी आप डिजायर कर रहे हो बच्चों से वो लिख के रखो, और उसके आगे सबसे पहले लिखो कि जो मेरा बच्चा कर रहा है, what he is trying to communicate with me, what he is trying perfect. to communicate, and secondly मैं जो एक्सपेक्ट कर रही हूँ वो मेरी एक्सपेक्टेशन आ कहाँ से रही है। कई Hmm. बार हम बिहेवियर को, बच्चों के बिहेवियर को रेजिस्ट करते हैं क्योंकि हम कोई फियर से ऑपरेट कर रहे होते हैं। आइदर वी Yes. हैव अ फियर दैट सोसाइटी क्या कहेगी अगर मेरा लड़का इस तरीके से रोएगा, या मेरी लड़की सबके सामने रोएगी या झगड़ा करेगी तो लोग क्या कहेंगे। सो मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसी चीजों से ऑपरेट होते हैं कि बड़ी जाके क्या करेगी, लोग क्या कहेंगे, ऐसा हुआ तो क्या ये ऐसा बन जाएगी, इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि अभी वो क्या फील कर रही है, अभी व्हाट शी इज Correct. ट्राइंग टू कम्युनिकेट टू मी। ये आपने बहुत ही ब्यूटीफुली बताया। इनफैक्ट जो बिहेवियर को पॉजिटिव और निगेटिव नहीं टर्म करना चाहिए, इट इज दी। इनफैक्ट इसमें से मुझे एक चीज याद आ रही है कि मैंने जब एनएलपी सर्टिफिकेशन किया उसमें एक चीज बोलते Hmm. हैं that every person has a positive intention behind his communication or action. You just need to Hmm. have that capacity to look into कि वो क्या पॉजिटिव Hmm. इंटेंशन है। इनफैक्ट बच्चों के लिए भी मैं यही बोलना चाहूंगी कि एवरी चाइल्ड हैज अ पॉजिटिव इंटेंशन, जो भी वो कर रहा है। सपोज वो झूठ भी बोल रहे तो उसके पीछे भी उसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंटेंशन होता है, भले उसके पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, बट देर इज Correct. नो इंटेंशन टू हर्ट पेरेंट्स और टू लेट देम डाउन, आई गेस। सो आई थिंक जब हम ये रेजिलियंट की बात करते हैं और अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड्स बिहेवियर की बात करते हैं, आपने बहुत ही कुछ चीजें अच्छे से बताई है कि हम बच्चों को लेबल नहीं कर सकते इमीजिएटली, इवन Hmm. जेंडर बायस Hmm. भी नहीं और नॉन जेंडर कोई भी तरीके से नहीं, Correct. जस्ट Correct. बी न्यूट्रल, राइट। Correct. And सो दैट्स रियली वंडरफुल। हाँ it's जी। not only labeling their own child, but labeling someone else also in front of the child. यस एग्जैक्टली। सो इट करेक्ट। इज अगर मैं मेरे कम्युनिकेशन बच्चे के, बोथ वे। हाँ हाँ, जी। यस, अगर मैं बच्चों के सामने ही किसी और को बोलती हूँ अरे वो देखो कैसा स्टूपिड बिहेव किया है, राइट। करेक्ट, अरे वो देखो पागल के जैसे बिहेव कर रहा है, एंड फॉर राइट। दैट मैटर बहुत बार जो हमारे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि एडीएचडी है, करेक्ट, अरे उसमें पागल है क्या, दिमाग नहीं है, करेक्ट, हम बहुत ही लूजली ये सारे टर्म्स यूज कर देते हैं। हमें नहीं राइट। पता बच्चा ये चीज कब एब्जॉर्ब किस करके तरीके कहाँ पे से यूज हम, करेगा। सो ट्रू, करेक्ट, सो वो चाहे फिर फ्रेंड्स के साथ ही हो या तो वो गिविंग बैक टू देयर पेरेंट्स ही क्यों ना हो। सो ट्रू। करेक्ट, सो इट्स नॉट ओनली लेबलिंग चाइल्ड बट लेबलिंग अदर्स इन द एनवायरमेंट अदर्स। ऑल्सो। सो ट्रू। इनफैक्ट इसमें से मुझे और चीजें याद आ रही है, अब बहुत ही ब्यूटीफुली ऑफ पुटिंग इट, एंड मेरी सब चीजें रिवाइज हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने बताई, जब मैं कम्युनिकेशन बोलती हूँ, इवन मेरा खुद के बारे में एज अ पेरेंट क्या सेल्फ टॉक है। सो इट इज नॉट ओनली हम्म। लेबलिंग योर चाइल्ड बट लेबलिंग अदर्स चाइल्ड, बट इवन लेबलिंग योर ओन बिहेवियर। कई बार हम फोन पे ऐसे ही बोल देते हैं, नहीं यार मुझे टाइम नहीं है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यार, प्रॉब्लम हो गई, लॉकडाउन हो गया, नहीं यार मेरा वजन आसानी से कम ही नहीं होता, नहीं नहीं मुझे आसानी से समझ ही नहीं आता। सो द चाइल्ड इज लिस्निंग टू यू, वो चीज जो आप खुद के बारे में बात कर रहे हो, बट बच्चे करेक्ट। का उसकी बेसिस पे सेल्फ बिलीव बन रहा है, राइट, टू द यस। रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, पूरी लाइफ, कि हाँ एक पैंडेमिक आया था जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, लॉकडाउन वाज अ प्रॉब्लम, इंस्टेड ऑफ लुकिंग इट एज एन अपॉर्चुनिटी, वजन बढ़ना इज अ प्रॉब्लम, सो इन टाइम नहीं रहना इज अ प्रॉब्लम। सो यही कि आपने बहुत सुंदर बातें बताई खुद के बारे में, दूसरों के बच्चे के बारे में, एंड आई वुड लाइक टू ऐड कि इवन खुद के बारे में भी हम लेबलिंग करेक्ट। थोड़ा सा अगर सोच समझ के इस्तेमाल करें तो द चिल्ड्रन विल हैव अ वंडरफुल लाइफ, आई गेस।
जब आप बोल रहे हो सेल्फ लेबलिंग की, सो व्हेन आई हैव टू पुट इट अक्रॉस स्पेसिफिकली एज अ पेरेंट, बहुत बार ये टर्म आ जाता है, ओके आई एम अ गुड पेरेंट और अ बैड पेरेंट, और गुड, यू आर अ गुड चाइल्ड टू मी और अ बैड चाइल्ड टू मी, जो हम बहुत इजीली यूज कर लेते हैं, करेक्ट? बट देर इज नो डेफिनेशन विच बोलते हैं ना, चेकलिस्ट नहीं है कि ये सारी चीजें मीट करते हो आप तो गुड यू आर अ बैड गुड पेरेंट, अगर नहीं करते हो तो बैड पेरेंट है, correct? So again, instead of just putting or generalizing these terms, let's focus राइट onto the behaviors and put it as appropriate and inappropriate. कि this राइट behavior of yours was appropriate, this behavior was inappropriate. क्योंकि सो I believe one behavior is not equivalent to an individual. There are multiple behaviors which makes a person. So बहुत सारी चीजें होगी जो आपको मेरे बारे में अच्छी नहीं लगती रहेगी, that doesn't mean you don't like me. There might be certain behaviors you would be liking about me. So जब हम feedback भी देते हैं या communicate भी करते हैं, या I know probably I was wrong here, but I managed it well. करेक्ट? जब सेल्फ टॉक में खुद के बात भी करते हो कि हाँ मुझे पता है मैं अच्छी पेरेंट नहीं हूँ, कि मैं तुम्हें टाइम नहीं दे सकती, तो वहीं पे आप बच्चों के सामने एज अ रोल मॉडल ऑफ अ पेरेंट यू आर पुटिंग योरसेल्फ एज अ बैड पेरेंट, which you never know when the child will give back to you, or the child might go and speak about you to someone else कि हाँ माई मम्मा ना इज अ वेरी बैड मम्मा, वो मुझे कुछ नहीं देती है, बट वो आया कहाँ से? करेक्ट, पर वो आया कहाँ से? बिकॉज वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट आवरसेल्व्स लाइक दिस टू द पेरेंट्स. सो जब हम फीडबैक भी देते हैं, लेट्स गिव फीडबैक और कम्युनिकेट विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक बिहेवियर्स एंड नॉट इन जनरल. So good boy, bad boy हम बोलते हैं, अरे you are my good boy ना, please do this. वो टाइमिंग के लिए काम आ जाता है for parents to get a way out, but for a longer run, I'm not sure how much it actually works. Absolutely, absolutely true. इनफैक्ट मुझे इस पे से और एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि कोई भी चीज गुड या बैड नहीं होती है, इट इज द पर्सपेक्टिव. आपने जैसे बताया आपके लिए वो सही होगी, शायद मेरे लिए वो गलत होगी. सो इवन बच्चे के एंगल से भी इंस्टेड ऑफ पुटिंग गुड और बैड, इफ वी कुड पुट एज यू सेड अप्रोप्रिएट, इनअप्रोप्रिएट और समथिंग गिविंग एज अ चॉइस आल्सो, that instead of this can we do that. So instead of bad boy I can say क्या हम नीचे गिराने से अच्छा बेटा हम प्लेट में अच्छे से झुक के खाएं, सो नीचे कम गिरेगा. सो इवन नीचे नहीं गिरेगा, उससे अच्छा नीचे कम गिरेगा, हम इस तरीके से कर सकते हैं क्या? सो आई थिंक वहां पे बच्चे के माइंड में ये नहीं बैठता कि नीचे गिराना इज बैड, बट बच्चे को ये समझते आते हैं कि हाँ देयर इज अ प्रॉपर वे विच इज अवेलेबल, एज यू सेड द अप्रोप्रिएट वे विच इज अवेलेबल. आपने बहुत सारे चीजें बताई है कम्युनिकेशन के बारे में, एक्नॉलेजिंग बिहेवियर, स्टेबल रिलेशनशिप जो एक होना चाहिए. इसमें मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगी कि अभी जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, इस सिचुएशन में कुछ स्पेसिफिक चीजें हम अगर पेरेंट्स को बता सके, क्योंकि अभी बच्चे वैसे देखा जाए तो सभी बच्चों का होम स्कूलिंग हो रहा है. ऑनलाइन स्कूल कितना इम्पैक्टफुल है कितना नहीं, ये सबके लिए अलग अलग सिनेरियो है. बट देन अपार्ट फ्रॉम दैट हम बच्चों के लिए अलग ऐसा क्या कर सकते हैं, हाउ वी कैन प्लान अवर डे इन अ वे दैट ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये बच्चे हमसे सीख रहे हैं. सो अगर कुछ चीजें आप इसमें बता पाए तो. सो जैसे कि पैंडेमिक में रोल ऑफ पेरेंट्स बहुत ही चेंज हो गया, लाइक इनफैक्ट बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका है, वेयर वो को टीचर्स हो चुके हैं विद द ऑनलाइन स्कूल गोइंग ऑन, स्पेशली फॉर द यंगर चिल्ड्रन. They have got the responsibility also to be like a friend, to be a game partner with them, but one that they need to be careful is not to become their entertainers. करेक्ट. बहुत बार क्या होता है कि पेरेंट्स, बच्चा रो रहा है कि ओके अपसेट है, मैं एंटरटेन करने लगता हूँ एज अ पेरेंट. करेक्ट. सो एवरी टाइम यू कांट बी अ एंटरटेनर टू द चाइल्ड. सो इंस्टेड ऑफ दैट इफ वी गिव देम अ चॉइस, जैसे आपने बताया विथ रिस्पेक्ट टू ओके खाना नीचे सो गिराने से अच्छा है हम प्लेट में रखेंगे अच्छे से तो कम गिरेगा, वी आर गिविंग द चॉइस. सो सेम वे इंस्टेड ऑफ एंटरटेनिंग देम, ओके तुम्हें बोर हो रहा है ना, बोलो मैं क्या कर सकता हूँ, तुम बोर हो रहे हो ना, चलो क्या करना है तुम्हें. करेक्ट. दैट कैन गिव देम द चॉइस टू मेक अ डिसीजन फॉर देमसेल्व्स. Okay, so right, and you are not the entertainer. Yeah.
इफ यू कुड इलैबोरेट मोर, क्योंकि ये काफी मुझे हेवी कंसेप्ट लग रहा है या ऑनेस्टली। जैसे कि मैं फॉर हाँ जी। एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे हाँ जी। बच्चे स्पेशली विद दिस एंटायर वेव दे हैव बीन एट होम, होम हाँ जी। स्कूलिंग कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ ऑनलाइन इंटरेक्शन हो रहा है, फिजिकल प्ले बहुत कम हो चुका है। तो घर राइट। पे एवरी टाइम इट्स नॉट पॉसिबल कि आप नए नए खिलौने या टॉयज या गेम्स हाँ, लाकर दे सकते हो। ओके। ओके। इवन आफ्टर प्लेइंग दे विल बी लाइक आई एम बोर्ड। तो जब वो राइट। बोर हो जाते हैं, अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें कुछ बना कर दूं, राइट। मैं तुम्हारे लिए कुछ करके दूं। सो यहाँ पे आप सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बन रहे हो, जो नहीं पॉसिबल होगा हर बार। ओके, एग्जैक्टली। मुझे पता है कि तुम घर पे इतने महीनों से बैठे हो, मैं समझ सकती हूँ तुम बहुत बोर हो, तुम क्या करना पसंद करोगे, मैं सो ये तुम्हारी मदद डिसीजन कैसे कर मेकिंग सकती आल्सो। हूँ। Yes, 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 yes. And plus, you are putting a platform to the children to explore by themselves. Okay, how do I beat my own boredom? राइट। राइट, करेक्ट, एब्सोल्युटली। क्योंकि हर बार वो पॉसिबल इनफैक्ट, नहीं होगा प्लेटफॉर्म देना। हाँ जी। सो ये बहुत ब्यूटीफुल चीज आपने बताई कि इनफैक्ट बीइंग एन एंटरटेनर इंस्टेड ऑफ बीइंग एन एंटरटेनर, व्हाई नॉट टू मेक चाइल्ड टेक हिज ओन डिसीजन। और करेक्ट। इस पे से मुझे ये समझ में आता है कि अभी के पैंडेमिक सिचुएशन ने हम सभी को सिखाया है कि अकेले किस तरीके से रहे। बहुत सारे लोगों के लिए अकेले रहना इज द स्कैरियस्ट थिंग। बट अगर यस। आपने जैसे ये चीज बताई है, मैं मेरे बच्चे को जब बोर हो रहा है तब इंस्टेड ऑफ बीइंग एंटरटेनर, मैं उसको अगर चॉइस दे के डिसीजन मेकिंग सिखाऊं, तो सोचिए उसकी आगे की लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन आएगी कि बच्चा अकेला है, कोई नहीं है, आउट ऑफ इंडिया है, पढ़ाई के लिए गया है, नो फ्रेंड्स आर देयर फॉर फ्यू मंथ्स। सो हाउ ही करेक्ट। इज गोइंग टू रिटेन हिज इंडिविजुअलिटी हैप्पीली। आई मीन लाइक यस, कई बच्चे यस, ऐसे यस। टाइम पे डिप्रेशन में चले जाते हैं। सो ऑसम, मुझे बहुत सुंदर लगी ये बात आपकी कि यस, इस सिचुएशन में स्पेशली हम बच्चों को इस तरीके से बनाए कि रेस्ट ऑफ देयर लाइफ दे कैन एक्सेप्ट दैट लोनलीनेस। Okay, करेक्ट, so सो वी हैव दिस। yeah, but then sometimes it is not possible to fulfill their wish. So yes, Heta, आपका क्या कहना है या, इस पे? so completely, not only sometime, but most of the time it won't be possible to fulfill their wish. So one important role is to communicate the facts to the child, अच्छा। right? And when you're putting that commitment also, okay, probably right now it's not possible to me because of XYZ reasons. We might probably have it later or something. Please make sure you fulfill to that commitment, right? And Right. getting irritated, yes, because as a हाँ, parent you have your own set of responsibilities also. correct. It's not only one parent role that you are playing, there are multiple roles that you would be playing. So how you are balancing your own regulation of emotions, taking care of your mental health plays a very important role. Because बहुत बार वो displacement हो जाता है, किसी का Correct. गुस्सा, just किसी because का okay the kids are the ones who won't be actually bouncing back much, उन पे जल्दी तुरंत निकल जाता है। सो राइट। सेल्फ केयर टू सर्टेन एक्सटेंड में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो अगर हर बार वो पॉसिबल नहीं है, सो देर इज समथिंग कॉल्ड एज अ बोर्डम jar, ओके। right? Now in that, probably you could sit with your child and make chits. On each of the chit you could write down each activity that your child likes to do, ओके। right? ओके। Now whenever the child is bored or tired or doesn't know what to do, and instead of you deciding, let's go back to your boredom jar and let's see what does it has to say, so you pick up one ओके। chit and let's see what does it has to say about the activity that you can do it, and you could continue doing that with the child, or the child could do that. वाओ, Correct? दैट्स रियली I mean, ब्यूटीफुल। yeah. And one thing to put across to the parents, especially who are there in the audience, is remember one that it's a process. ऐसा नहीं है कि ओके प्रोबेबली मैंने लाइव सेशन अटेंड किया जहाँ पे मुझे ये स्ट्रैटेजीज मिली कि मैंने पेरेंटिंग कोर्स किया, ओके इट वुड हैपन फ्रॉम नाउ, दैट वुडंट. इट्स अ प्रोसेस. यू नीड टू गिव टाइम टू योरसेल्फ, यू नीड टू गिव टाइम टू योर ओन चाइल्ड ऑल्सो. वो राइट। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. हम इंस्टेंट जो बोलते हैं ना, वो इंस्टेंट कुछ भी नहीं होता है. इवन मैगी 2 मिनट्स वाली 2 मिनट्स में नहीं बनती है. नहीं। करेक्ट. तो तो ये तो पूरा पेरेंटिंग प्रोसेस है जिसको टाइम हमें देना बहुत ही देना। इम्पोर्टेंट है. सो हैविंग पेशेंस थ्रू आउट द जर्नी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो ट्रू। इसमें आपने जो बताया बोर्डम जार के बारे में, मुझे बहुत अच्छा लगा
मैं एक इसमें एक चीज इम्प्लीमेंट करती हूँ मेरे बेटे के साथ, जो मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि यस। हमें ना स्टार्ट ऑफ द डे ही हमारा डे प्लान कर लेते हैं, और वो इस तरीके से प्लान करती कि फुल इंथुजियाज्म के साथ, इट इज लाइक वाओ बेबी आज हम क्या करेंगे पता है, आज मम्मा को ना थोड़ा ज्यादा काम है तो मम्मा शायद बिजी रहेगी, तो उस टाइम पे आप क्या क्या करोगे बोलो, फिर मम्मा मैं ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा। सो आई गिव हिम अ चार्ट ऑफ टू डूज जो वो उसके हिसाब से लीड करता है। वहां पे कोई भी एक फैक्टर नहीं है कि मैं उसे फोर्स कर रही हूँ कोई चीज करने में, या फिर यू नो देर इज सम रेजिस्टेंस फ्रॉम हिज साइड। इट इज लाइक वी बोथ वांट दैट टू बी डन। तो मम्मा मैं आज टेबल्स कर लूँ, मम्मा मैं आज स्टोरी रीड कर लूँ, हाँ कर लो बेटा। सो आई गिव हिम अ लिस्ट ऑफ टू डूज जो वो पूरे दिन में उसके हिसाब से करता है। सो यहाँ पे एट द स्टार्ट ऑफ द डे बच्चे को पता रहता है कि मम्मा बिजी रहने वाली है। सो देर इज नो इरिटेबिलिटी फ्रॉम हिज साइड कि मम्मा आप मुझे टाइम नहीं दे पा रहे हो, और ना ही मुझे वो कहीं पे गिल्ट फीलिंग आता है कि मैं मेरे बच्चे को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, बिकॉज आई करेक्ट। हैव ऑलरेडी प्लान्ड इट वेल कि कैसे होने करेक्ट। वाला है, मेरा दिन कैसे जाएगा बच्चों के साथ। सो ये चीज बहुत एक्सेलेंटली यू अच्छे से प्री प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर द डे। एग्जैक्टली प्री प्रिपेयर द चाइल्ड सो दैट बच्चे मेंटली, हाँ मम्मा आप कितने बजे फ्री हो जाओगे, 7 o'clock, ओके। तो 7 o'clock तक मैं बीच बीच में आके अगर वर्क फ्रॉम होम है तो मैं आपको ये चीजें बताऊंगा, दैट्स फाइन फॉर मी। सो ये चीज बहुत मैटर करती है कि आपने जैसे बताया कम्युनिकेशन, कि मैं बच्चे को क्या एडवांस में बता रही हूँ कि बेटा आज शायद मैं कम टाइम दे पाऊंगी आपको, तो बच्चा मेंटली रेडी रहता है, दे आर इनटू एक्सेप्टेबल मोड, वो हमेशा हर चीज एक्सेप्ट करते हैं। सो ये करेक्ट। कम्युनिकेशन मुझे लगता है काफी प्ले करेगा रोल यस, इम्पोर्टेंट। यस, यस। सो मैं बहुत ही ये चीज बोलती हूँ इवन टू माय टीम मेंबर्स वेर आई working or I'm a part of it and previously also where I used to work that okay irrespective of the hierarchy आप क्या बोलते हो वो तो इम्पोर्टेंट है ही बट किस तरीके से बोलते हो ना वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे मैं सिर्फ बोलूंगी बच्चे को अरे ये तुम कर लो हाँ वेरी वर्सेस प्लीज तुम ये मुझे करने में हेल्प करोगे। सो इन माय सेकेंड ऑप्शन ऑटोमेटिकली द कोऑपरेटिवनेस ऑफ द चाइल्ड वुड इंक्रीज। एग्जैक्टली। सो तरीका बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि हम किस तरीके से बात करते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और ये सारी चीजें कॉन्शियस एफर्ट्स लगती है उसमें हाँ एज ए जी ये ह्यूमन बहुत, बीइंग। Yes, as एब्सोल्युटली a human being, we also might falter and we might also make errors. So राइट there is no harm as a parent to make errors. But at the day राइट जब आपको realize होता है, you can go back and say a sorry to your child. राइट Don't keep राइट that age एब्सोल्युटली factor. अरे मैं मेरे बच्चे को कैसे सॉरी बोलूं, उसको समझना चाहिए बिल्कुल वो छोटा है, देर इज नो हार्म। क्योंकि अगर आप सॉरी बोलना सीखोगे ना बच्चे से, बच्चा हाँ खुद जी सॉरी बोलना सीखेगा। आप अपनी राइट मिस्टेक्स एक्सेप्ट करना सीखोगे, बच्चा भी वो सीखेगा। सही करेक्ट। बात सो है। इट्स completely okay to make errors. That हाँ doesn't जी make you a bad parent कि अरे मैंने कैसे गलती कर दी मैं क्यों सॉरी बोलूं। Don't हाँ think हाँ about that. Once you have understood, put across the facts to the child. अरे नहीं मुझे ना काम का बहुत प्रेशर था, मेरे बॉस ने टाइमलाइन दी थी कि जो भी रीजन हो और तभी मैं हाँ थोड़ी टेंशन में थी, उसके लिए मेरे मुंह से ऐसे बोल दिया गया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। आगे यस से मैं ध्यान एब्सोल्युटली रखूंगी। हाँ करेक्ट। जी तो वो चीज इवन ट्रू ट्रू बच्चे को जब तुम कन्फ्रंट करते हो उनकी मिस्टेक्स, वो भी ये चीज इनकलकेट करेगा। समझते हैं, हाँ और प्रैक्टिस करेक्ट, भी करेंगे वो चीज को आगे। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। सो सेम वे इन हम सेंस ऑफ बोलिए नहीं इन नहीं एडिशन। सो इन एडिशन टू दिस, जैसे आपने बताया कि हम बच्चों को किस तरीके से बात कर रहे हैं, आपने चॉइस के बारे में बताया कि क्या प्लीज तुम मुझे हेल्प करोगे, तो इसमें और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि लेट्स अंडरस्टैंड कि 8 से 9 साल तक के ना बच्चे बहुत ही प्लेफुल मोड में रहते हैं, दे आर नॉट करेक्ट, सीरियस एज वी आर सीरियस, राइट। तो मुझे उनपे उनके साथ बात करते समय भी उसी प्लेफुल मोड से बात करनी है, समथिंग लाइक दिस, वाओ चलो आज ये करें क्या, चलो हम ये करें क्या। ऑब्वियसली मैं दिन भर मेरे ऑफिस का काम करने वाली हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट विथ यू, बट बच्चे को एक रहता है मम्मा ने बोला हम करें क्या, तो दिस इज अ करेक्ट, जॉइंट टास्क एंड विथ काइंड ऑफ एक्साइटमेंट, सो दैट बच्चा का वो टोन ऑफ द डे बैठ जाता है। नहीं तो अगर हम स्टार्टिंग में बोलेंगे चलो बेटा आज ये तुम कर लेना, आज तुम ये कर लेना, अच्छा और क्या करना है बोलो, अगर मैं इतने रफ और इतने सैड टोन में बोलूंगी तो बच्चा इज लाइक नहीं मम्मा मैं देखता हूँ करूंगा तो करूंगा। सो वो करेक्ट चीज एंड मुझे लगती है कि हम कहीं भूल गए हैं, बड़ा होने के बाद हम छोटे बच्चों जैसे रहना भूल गए हैं। सो लेट्स बी करेक्ट। लाइक अ चाइल्ड विद द चाइल्ड। Yes, it's important to actually communicate as per the age of the opposite person and the understanding level, Yes, right? absolutely. Like I
interacted recently with a 3.5-year-old kid whose parents have been affected with COVID positive. So now to keep that 3.5-year-old away from the parents is a task. I can't expect that completely, but if make the child understand in a correct way that your parents have got fever, if you go near to them, you would also get that fever. So if I'm putting and expressing in a correct way, so automatically the child will cooperate. So that child, when she was communicating with someone else, she said that I'm staying with my aunt because my parents have got COVID. My parents have got fever. Correct? So see, that's how explaining in a correct way plays a very important role. Yes, absolutely. And even इस explanation में कहीं पे हम बच्चे को fear pass on नहीं कर रहे हैं. I mean, like अगर parents को COVID हुआ है तो नहीं दूर रहना चाहिए, उनके पास नहीं जाना चाहिए, तुमको भी हो जाएगा. So instead, child एक fear से दूर रहे, उससे अच्छा है कि बच्चा understanding से दूर रहे, एक concern से दूर रहे. करेक्ट. सो ये छोटी छोटी चीजें ना बहुत इम्पोर्टेंट मैटर करती है. जैसे बोलते हैं ओके ग्रैटिट्यूड रखो, बट व्हेन एज अ अडल्ट जब मेरे में ही सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड नहीं है, वो कैसे आएगी? एकदम वो होगी ही नहीं. जैसे हम बच्चों को बोलते हैं अरे इतनी सारी चीजें ला कर दी फिर भी तुम्हारी डिमांड्स खत्म नहीं होती है. लेट्स सिट बैक एंड इंट्रोस्पेक्ट ना कि आर वी सेटिस्फाइड एनी टाइम with the things that we have, are we thankful? Correct? So अगर वो हम पे नहीं है तो automatically वो बच्चों पे नहीं आएगा. So true. So here the key is, I guess, being conscious is the key. Being conscious about the words, about your actions, about your reaction to the situation. Being conscious about each and everything. Even when the child is around or even when the child is not around, because the vibes are reaching to the child. Correct, absolutely correct. Like these days, especially after pandemic started, बहुत सारी चीजें start हो गए. Okay, being mindful. वो सारी चीजें ना सुनने में बहुत अच्छी लगती है. But when it comes to execution, like हम session में रहेंगे, हम पूरा full fledged ये motivated हो जाते. नहीं अब से करूंगी. Correct. That's a good part. That's a first step. But execution now takes double the amount of time. Yeah. And start with one thing. Yes. Start with one thing at a time. सारी चीजें एक साथ करोगे आप खुद completely frustrated हो. Okay, ये चल क्या रहा है? Correct. But start with one at a time. क्योंकि कम वॉट में ना आज मुझे 15 minutes बच्चे के साथ बैठना है without any screen. TV नहीं, laptop नहीं, टैब नहीं, मोबाइल नहीं, कुछ भी नहीं. लेट दैट 15 मिनट्स भी दे. और अगर सेपरेट 15 मिनट्स भी नहीं निकाल सकते ना, वी कुड हैव अ थिंग ओके लेट द मील टाइम बी विदाउट टीवी और गैजेट्स. इवन दैट इज परफेक्टली ओके. व्हेन यू आर डूइंग योर हाउसहोल्ड वर्क, व्हेन यू आर डूइंग हाउसहोल्ड वर्क, include your child. Exactly, right. Even that could be a good parent-child time also that could be taken. So given pandemic, I agree, it's been a major crisis situation where balancing work, home, additional responsibilities with the fear of getting COVID positive, too many things. But these little pockets will help you and give you an opportunity to have a very good rapport with your child. Absolutely. I think this is one of the opportunity which we have received. Otherwise, तो हम लोग ऑफिस में बिजी रहते थे, बच्चे कहाँ बड़े हो रहे पता ही नहीं चलता था. But I think this opportunity we can capitalize so that we are spending that wonderful time with our children कि वापस ये वक्त कभी भी नहीं मिलने वाला है हमें लाइफ. Correct. Especially for certain fathers. So certain fathers were very grateful to this entire period because they have been busy in their work and they never had time to spend with their children even though they wanted to. So the fatherhood has gotten a great significance in these times of pandemic, where certain companies, in order to avoid economic drop down, so they had to provide more of a flexible working hours. And there have been researchers which shown that almost 56% there had been increase in the fatherhood responsibilities, which they took in by themselves. Yes, when they saw that there has been an increase in burnout in mothers. Okay. Yeah, so that was one of the
recently done research in December 2020, and wherein they put in that, okay, there had been increase, a very significant increase of 56% in the fatherhood responsibilities. Right. So here one of our follower is asking, but the father does not spend time with kids. So what is So your say on that? again, now this is a behavior. My next step would be why. To understand, okay, why is it that the father is unable to spend time, unable to make him understand? So probably then we can take it help from a professional. That would be the role. So you could have That's a important. appointment or a consultation or taking help from professionals like psychologists, counselors who would help them to understand, okay, what is the reason why father Right. is unable to understand the responsibilities or be Yes. a joint partner in the parenting, and how we Yes. can work through it. Right. Or in fact, I think if a basic step which we could do at home is again to give a choice or to ask for it. Like instead, many times what happens is we unknowingly command a person, right? कि आप spend नहीं Correct. करते हो time, आप करो. So instead of that, we are playing a game. Would you like to join us? Something like that. Let's play a cricket game. ऐसा कुछ लेट्स प्ले लूडो टुगेदर हाफ एन आवर चलो चलो हाफ एन आवर खेलते हैं तो ऐसी कुछ चीजें अगर हम कोशिश करें इन केस ऑब्वियसली आपने जो ऑप्शन बोला वो तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है बट अगर घर पे हम लोग अगर साथ में एज अ फैमिली कुछ गेम्स अरेंज करें जिसमें फादर भी इन्वॉल्व है सो आई थिंक धीरे धीरे वो अपने आप आदत बन सकती है तो वो एक कोशिश करके Correct. देख सकते हैं प्लीज So then हाईलाइट there ऑन is को one more thing पेरेंटिंग on co-parenting. Yes, so co-parenting plays a very important role because otherwise, irrespective, I know we have been in the culture where mothers have been expected to have the primary role of upbringing the child, but right again, father also plays a very important role. Probably the ratio might not be exactly 50-50. Let that be yes 60-40, let that be 70-30. But again, that plays a very important role because again, what happens in our scenario, especially a child would automatically know the role of the parent. Okay, मुझे कुछ चीज चाहिए ना तो वो मुझे पापा से ही मिलेगी. So all my material things I know I'll get it from my father. So for only fulfilling my needs, I'll be going to my father. Otherwise, I have no communication with the father. बट जबकि right मुझे पता है ओके अगर मेरे से पापा के पास मांगने से कुछ नहीं होगा आई नो आई नीड तो टू वो कन्विंस माई मिलेगा मदर एंड मदर विल go and speak to the father and I'll get it. So yes kids also have that thing, but when it is correct co-parenting, so when absolutely both the parents taken a equal responsibility or taken the part of upbringing a child, even the parents child know that okay this is how it functions with both the parents. It becomes like a teamwork. right And then any point of time when we fail, it's not that I have failed, you have failed, it's the team who have failed. So let's sit back and think, okay, why it didn't work? right Correct? So that also plays a very important role when it is co-parenting. And especially in order to avoid the burnout onto either of the parent. right Like these so days, there have been working mothers and parents who've yes taken the primary role. Correct? So yes it's not that only mothers who have burnout, but even the fathers who taken the primary role of upbringing, even they yes experience a burnout. Correct? But when we absolutely are sharing, we are giving them individual spaces also for them own yes selves. And that's right how we would be able to continue with our this journey for a longer run. right I think few spoken and unspoken rules would really play an important role in co-parenting maybe Correct. with few parents non-spoken rules are always there but with few parents there can be some spoken rules about what you are going to look after what I'm going to look after even in case of the behavioral parts as you said that mama will convince to papa these children learn automatically we need not in Yes. fact verbalize this thing to them so it is really important as to what are those spoken and non-spoken rules which both of them are deciding for the parenting journey. That's awesome, Hita. I mean, you have given such a wonderful insight to us into every area, Thank every you. aspect of the child's growth. So, Heta, how Astitva Clinic can help our followers? Can you just elaborate more on that? Yeah. So giving a brief about Astitva Clinic. So it's a mental health clinic
which Okay. caters to all age group populations, right from pediatric to geriatric. And it has its own team. So wherein we are three joint founders of the clinic. So it's one of it being myself. The other two are, one is Anaga Afridi, who is a special educator and working in the field since almost 3 decades now. And the second one is Miss Vishaka Punjani, again, who is a psychologist and have been associated with even High Court of Bombay at Pre-Litigation Center. So it's three Wow. of us who started with this. Now, again, the whole purpose to start was to provide mental health services to all the people of the community, irrespective of their socioeconomic strata. So, even though we Wow. are a private clinic, but we don't have any set packages, we do have Wow. standard fees, but again, the charges also depends based on the socioeconomic strata. And Yes. then we do have a team wherein we have a consultant psychiatrist, consultant neurodevelopmental pediatrician, we have a Mhm. developmental neurologist, dance movement therapist, we have a music movement therapist, we have junior research Oh, assistants, we do provide mentorship services. So that's wow. how we provide in varied services. And we don't see patients only at the clinic, but apart from that, we also are associated with different organizations and schools, wherein, Okay. as per the need of them, we do conduct workshops, we do have parenting modules completely based on what is the requirement. So that's Wow, in that's brief really that what awesome. we do in. So we do psychological assessment, all varied kind of assessment for children, for Achha. adults, and for old age population. Wow, Wherein that's for great. children it could be behavioral testing, it could be Okay. IQ testing, career guidance, testings for specific learning disorders. Then for Okay. adult population, again, any kind of a psychiatric condition, or there have been individuals who have reached out to us for help just to improve onto their mental health. That Okay. I think I've been able to manage it well, but I want to learn few strategies how I would be able to improve onto that. So that is what, Okay. even we have adult population reaching out to us. We also cater to relationship related concerns. So couple Oh, counseling, marital counseling, that's what even we do it. And then for geriatric population, we do have again individuals reaching out for help in terms of, okay, probably I've got memory related concerns, organizational concerns, I feel lonely. So all of those geriatric related concerns. So that's how we cater to the entire of the that's great. population. Wow, that's really great, Hita. I wish you all the best, and I wish Thank you so our much. parents and our community they'll definitely reach out to you for help Yes, because you are such a wonderful person who is ready to give so much back to the community. Thank you thank so you. much for being there with me on the session here. And Thank you I so hope I'm much. going to save this live session so that our parents can definitely watch this later also. Yes, yes, yes. And in case if we want to reach out to Astitva Clinic, so we do have an Instagram page. So Astitva Yes, Clinic, wherein the details has been mentioned. So we are right. located at Matunga, Mumbai. And right now we Okay, are providing services in person at the clinic and online too. So we are that's great. operating on both the modes. That's great. Thank you, Rakhi. Thank you Thank for you, your Rakhi. Yes. yes. Thank you Thank to you so all much. the audience and viewers who have been part of us and patiently listening. In case if you all have any other questions, you can drop down. Otherwise, Yes, then we could end this live session. right, right. Absolutely. We will be really happy to take the questions. If you have any questions, you can drop on the whenever I post this online. You can just drop through a DM Yes, or a through comment also. We both will be sure, happy and glad for that. sure. Thank you so much, Thank you, Rakhi. Thank Rakhi. you. Thank you. Thank you. Thank you, Hello, thank you, Namrata. Heta. Yes, it was Yes, really great having session with you and interacting with you. Looking same forward you. for more such sessions in future. Yes, definitely. We could pick up certain topics which might be just Yes, helping the parents to know right. more about their behaviors and to just introspect and help them to work on to their little skills. Yes, Yes. absolutely. Thank you. Thank Have a great you. Sunday, all of you. Yes, Bye. yes. Take care, Bye. Namrata. Bye. Bye. Bye, Heta. Bye. Bye.